Namaskar. I am very thankful of all trustees, members of Adarsh College of Arts and Commerce, Badlapur, District Thane, and Rashtriya Samaj Vigyan Parishad, all members and all dignitaries. I am especially very thankful to Mrs. Vaidehi Sriram Daftardar. Because of her, I am here today. I got this opportunity to talk to you people. Friends, once a senior man almost of 91 years old, he was bedridden, he was in coma. All family members were just together, they gathered in the hospital near his bed. Suddenly he opened his eyes, looked around everybody and just mumbled words, lemon, lemon, and he closed his eyes forever. Everybody was surprised what exactly he wanted to say. Nobody could understand what is meant by lemon. But anyway, they said perhaps it is his last wish. So they distributed almost one truckload of lemons on 12th day of his ritual. After some time, they were four brothers, they got separated. They said, now we'll get separated, and they sold the ancestral property of their father and they purchased few flats outside. The building was sold to a contractor, a builder. The builder wanted to build one multi-story building on that, and after that he demolished everything. After demolishing everything, he just started digging foundation. That time he got one trunk. He took it, he just opened it. There are a lot of jewelries, gold jewelries, cash, almost more than 1 crore rupees value. He kept it, but the neighbors, they gave that message to the original owner of that particular building. They came there, they said that property belongs to us because you got it. We sold this building, not that property. But he said, no, once I purchased, I am the owner of this. They went to court, and in court also court gave decision in favor of builder. Once the grandson who just inquired there where was that hidden treasure, then he came to know there was a lemon tree where he used to play cricket, and below that lemon tree there was a hidden treasure. But they never thought what exactly their grandpa was saying, and the treasure was there. Friends, we also have got hidden treasure of our country, Srimad Bhagavad Gita. This treasure is very nowadays actually very few people know about it. Bhagavad Gita we know, many people they don't know even Bhagavad Gita. They say Bhagavad Gita. It's not Bhagavad. Bhagavad is different and Bhagavad Gita is different. But anyway, Bhagavad Gita, it has been published in more than 75 languages all over the world. हम यदि देखें कि श्रीमद् भगवद गीता जो है ये 5000 वर्ष पूर्व लिखी गई, यह लिखा गया ग्रंथ है। हर धार्मिक ग्रंथ महत्वपूर्ण है। हर धर्म की शिक्षा एक ही है कि उसमें नीतिमत्ता हो, हर व्यक्ति में प्रेम हो, कर्तव्य की भावना हो, श्रद्धा हो। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता इससे हटकर है। इसके अंदर फिजिक्स है, बायोलॉजी है, साइकियाट्री है, डाइट कंट्रोल बताया गया है, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी एंड मेनी मोर थिंग्स। यीशु क्रिस्त का जन्म 2020 साल पहले हुआ था और उन्होंने क्रिश्चियन धर्म बनाया। उसके हजारों साल के बाद मोहम्मद पैगंबर आए, उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। बाद में बुद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म आदि आए। यीशु क्रिस्त जब आए थे, उन्होंने कहा
कि मैं भगवान का पुत्र हूँ, भगवान ने मुझे भेजा है। मोहम्मद पैगंबर जब आए, उन्होंने कहा मैं पैगंबर हूँ, भगवान का दूत हूँ, मैं एक मैसेंजर हूँ भगवान का। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं भगवान हूँ। तो भगवद गीता का हर शब्द भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ शब्द है। मैं श्री कृष्ण को भगवान मानता हूँ, ये जरूरी नहीं कि हर कोई माने, लेकिन एक बात तो निश्चित है, भगवद गीता में हिंदू शब्द कहीं पर भी नहीं आया, ना उस समय दूसरा कोई धर्म था 5000 वर्ष पूर्व। ये मानव धर्म ही समझकर ये पूरा ग्रंथ लिखा गया है मानवता के लिए, और दैट्स व्हाई इट इज अ फिलॉसफी। जो लोग इसे धर्म ग्रंथ नहीं मानते मत मानिए, कोई बात नहीं, इट्स रियली इट इज नॉट धर्म ग्रंथ, इट इज अ फिलॉसफी। यह हमको समझना जरूरी है। आज के इस मॉडर्न साइंस के हिसाब से यदि हम कंपेयर करें श्रीमद् भगवद गीता को, पहली बात तो एक आपको बताना चाहूंगा, मैं भगवद गीता का बहुत जानकार नहीं हूं। भगवद गीता एक अथाह सागर है जिसका अभ्यास करते करते लोग अपना जीवन बिता देते हैं, पूरा अभ्यास नहीं होता। मैं तो इतने महासागर के किनारे पर छोटा सा तैरने वाला एक व्यक्ति हूँ जिसने गहराई देखी नहीं, लेकिन फिर भी जो कुछ मैं समझ पाया हूँ भगवद गीता आप तक पहुँचाने का मैं मेरे हिसाब से प्रयास करूँगा। श्रीमद् भगवद गीता आज का मॉडर्न साइंस यदि हम कंपेयर करें तो इसके अंदर कई सामने आपको दिखेंगे। एक दो तीन उदाहरण मैं आपको दूंगा। फिजिक्स के अंदर एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, which says energy cannot be created nor destroyed. It is constant. Energy can change its form from one form to another form, but it is never destroyed. एनर्जी जो है ये कभी खत्म नहीं होती, ये भले ही रूप बदलती है। फॉर एग्जाम्पल एक जनरेटर है जिसके अंदर एक मैग्नेटिक कॉइल बिठाई गई है। उस मैग्नेटिक कॉइल को यदि हम जोर से घुमा दें तो उससे इलेक्ट्रिसिटी निर्माण होती है, और ये इलेक्ट्रिसिटी निर्माण होते समय उससे कुछ हीट बाहर निकलती है। तो गणित ये बताता है, फिजिक्स ये बताता है, एनर्जी इधर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज द फॉर्म। सो हियर इन दिस केस the magnetic energy is converted into electrical energy and little heat is exerted, that is called thermal energy. So total magnetic energy equal to thermal energy plus electrical energy. The total energy remains the same. ये बात जो है, यही बात श्रीमद् भगवद गीता में भी बताई गई है। 5000 वर्ष पूर्व लिखी गई भगवद गीता में। उसमें कहा है कि वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। क्योंकि नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा अमर है, इसे शस्त्र नहीं काट सकते, इसे अग्नि नहीं जला सकती, इसे वायु नहीं सुखा सकती, इसे जल नहीं गला सकता, यह अमर है। अब यहां प्रश्न ये आता है हर एक के मन में, यहां पर ये जो एनर्जी है और इस आत्मा का संबंध क्या है? स्वाभाविक ये मन में प्रश्न आना। बट देयर आर 2 साइंटिस्ट्स हु स्टडीड क्वांटम साइंस का अभ्यास करने वाले 2 साइंटिस्ट हैं। वन ऑफ द साइंटिस्ट इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, स्टुअर्ट हेनरॉफ, एंड अदर साइंटिस्ट फ्रॉम इंग्लैंड, सर रॉजर पेनरोज। ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, दोनों ने सेपरेट अलग अलग
प्रयोग किया। एंड दे प्रूव, साइंटिफिकली दे प्रूव दैट थ्रू द क्वांटम फिजिक्स एंड theory of human consciousness, they prove that at the time of death an energy is released from the brain through its microtubules of the brains. तो ब्रेन के माइक्रोट्यूब्यूल से मृत्यु के समय एक एनर्जी रिलीज होती है और वातावरण में चली जाती है। ये उन्होंने साइंटिफिकली सिद्ध किया। हमारे शास्त्रों में भी यही बात बताई है कि मृत्यु के समय अपनी आत्मा मस्तिष्क से निकालकर इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। सो हियर वी कैन से आत्मा इज एन एनर्जी एंड एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड। भगवद गीता भी वही कहती है, आत्मा अमर है। दूसरी बात, मेडिटेशन। कई लोग ये समझते हैं कि मेडिटेशन जो है ये चाइना या जापान से अपने भारत में आया है। गलत बात है। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के अंदर मेडिटेशन के ऊपर या ध्यान के ऊपर, जिसको ध्यान योग कहेंगे, बहुत डिटेल विस्तृत चर्चा की गई है। इसके अंदर ये बताया गया है कि हम कैसे बैठे ध्यान करने के लिए, कहाँ बैठे, कैसे अपनी मानसिक स्थिति हो, कैसे सब, एवरीथिंग इन डिटेल इट इज शोन। और ये ध्यान का उपयोग क्या है? ध्यान का उपयोग है हमारी जो मानसिक स्थिति है जो डिस्टर्ब हो जाती है। मेनी ऑफ द टाइम्स वी गेट टेंशन, वी गेट स्ट्रेस, वी गेट एंगर, एंड दैट्स व्हाई एक्चुअली वी गेट डिस्टर्ब। ये जो है, जब हम टेंशन में आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, उस समय अपने शरीर में से एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल, ये दो केमिकल्स का स्त्राव शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि अपने हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, बीपी शूट हो जाता है, मुंह सूखने लगता है, शरीर कांपने लगता है, ये सब बातें होने लगती है तब। और ये यदि लॉन्ग टर्म तक चलता रहे तो उससे डायबिटीज हो जाता है, हार्ट के प्रॉब्लम होता है, हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ता है। दीज आर कॉल्ड साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। दिस साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स आर, ये मन की धरातल पर की व्याधियां हैं। इसको ये जो है हम देख सकते हैं, साइंटिफिकली इट इज प्रूव, वी कैन प्रूव नाउ डेज, क्योंकि हमारे पास अभी ऐसे मशीन्स आ गए हैं। एफएमआरआई है जो है, फंक्शनल एमआरआई या ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ब्रेन का इंसेफ, जैसे हम हार्ट का ईसीजी निकालते हैं, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वैसे ही इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ ईईजी, ये इसको वेव फॉर्म कहते हैं। हमारे ब्रेन की जो वेव्स हैं अलग अलग कंडीशन में कैसे होते हैं, ये उसमें बताया जाता है। उसमें सबसे नीचे जो है डेल्टा वेव्स होते हैं, जो कि 4 हर्ट्ज तक काउंट की जाती है। उसके बाद थीटा वेव्स होते हैं 4 से 8 हर्ट्ज, 8 से 12 तक अल्फा हर्ट्ज, अल्फा वेव्स, एंड उसके बाद 12 से लेकर 40 तक बीटा वेव्स, और उसके बाद गामा वेव्स। ये सभी वेव फॉर्म जो है ये हम देख सकते हैं। शुरू में जो 4 हर्ट्ज तक होता है डेल्टा, इसमें हम जब नींद में होते हैं उस समय हमारे ब्रेन की वेव्स बहुत धीरे धीरे चलते हैं, शांत होते हैं। अब स्वप्नावस्था में चले जाते हैं, उस समय से ऊपर आ जाते हैं। हम जब काम करते हैं जागृत अवस्था में, बेटा अवस्था में होते हैं 12 से 40 हर्ट्ज के बीच में। हमारा ब्रेन जब एक्टिवली काम करने लगता है, हम 20 के आसपास रहते हैं, 20 हर्ट्ज के अपने ये वेव्स दिखते हैं अपने को उसके अंदर। हम जब गुस्से में आ जाते हैं, हम जब टेंशन में आ जाते हैं, हम जब स्ट्रेस में आ जाते हैं, उस समय अपने वेव्स जो है 20 के ऊपर चले जाते हैं, 20 हर्ट्ज के ऊपर। ये सभी हम नोट कर सकते हैं। इसके ऊपर पिछले 50 सालों में बहुत रिसर्च हुआ है। हजारों रिसर्च पेपर, भारत में नहीं पूरी दुनिया में से इसके ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर, ध्यान के ऊपर रिसर्च पेपर निकले हैं। और उन्होंने सिद्ध किया है कि मेडिटेशन से अपनी मेंटल स्थिति को स्थिर किया जा सकता है।
जो डिस्टर्बेंस है उसको हम स्थिर कर सकते हैं। वी कैन मैनेज आवर स्ट्रेस थ्रू भगवद गीता, थ्रू मेडिटेशन। ऐसे तो हजारों रिसर्च पेपर है, मेरे पास एक रिसर्च पेपर जस्ट आपको पढ़ के बताऊंगा। इसी जर्नल ऑफ साइकोसोमैटिक मेडिसिन, सितंबर अक्टूबर 2013, वॉल्यूम नंबर 62, इश्यू नंबर 5, पेज नंबर 613 to 622. The effect of mindfulness meditation based stress reduction program on mood and symptoms of stress in cancer outpatients, ये अमेरिका में लिया गया प्रयोग है। इसका डिटेल स्टडी करके अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या आया मैं आपको बताता हूँ। कंक्लूजन में एक कहते हैं, दिस प्रोग्राम वाज इफेक्टिव इन डिक्रीजिंग मूड डिस्टर्बेंसेस and stress symptoms in both male and female patients with a wide variety of cancer diagnosis, stages of illness and all ages. Modern research papers prove that meditation is the best solution for such ailments. ये एक मेडिटेशन के पेशेंट का एक अलग ग्रुप बनाया गया, विदाउट मेडिटेशन का एक बनाया गया और ये सर्वे किया गया। ये एक रिसर्च पेपर अपने हाथ में, ऐसे हजारों रिसर्च पेपर सिद्ध हो चुका है कि मेडिटेशन से फायदा क्या होता है। ये मेडिटेशन का फायदा कैसे होता है अपने ऊपर, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता इसका अभ्यास जो है, आज का जो साइंस अपना अभ्यास करता है, ये स्थूल बातों का अभ्यास करता है। भगवद गीता का अभ्यास सूक्ष्म और अति सूक्ष्म बातों तक पहुंच गया है, जहां तक आज का मॉडर्न साइंस शायद पहुंचा नहीं है। भगवद गीता कहती है कि जैसे जैसे सूक्ष्म होते जाएंगे, सूक्ष्मता की तरफ जाएंगे, श्रेष्ठता बढ़ती जाएगी, उसका इफेक्ट बढ़ते जाएगा। हम यदि उदाहरण के लिए यदि देखें तो होम्योपैथी, इसका प्रिंसिपल एक ही है, एक मेडिसिन लेकर उसका 100 टाइम्स डाइल्यूशन किया जाता है, उसमें का फिर एक भाग निकाल के उसको फिर से वापस डाइल्यूशन किया जाता है, फिर उसमें का एक भाग निकाल कर दूसरा और डाइल्यूशन 100 टाइम्स किया जाता है। जैसे जैसे हम उसको डाइल्यूशन सूक्ष्म बनाते जाएंगे, उसकी पोटेंसी बढ़ते जाती है। ये प्रिंसिपल है होम्योपैथी का। इसके अलावा दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं, बर्फ। पानी जो है बर्फ के रूप में होता है, उसमें शक्ति होती है, लेकिन उसके सूक्ष्म रूप में यदि चले जाएं, पानी के रूप में, लिक्विड के रूप में दिया गया, तो उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकते हैं पानी से। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई सूक्ष्म होने से। पानी का सूक्ष्म रूप भाप है, वेपर स्टेट। इसके अंदर भाप में यदि गए तो और सूक्ष्म बन गई, उसकी शक्ति कितनी बढ़ गई, हजारों टन का रेलवे का इंजन और उसकी पूरी ट्रेन खींचने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। जैसे सूक्ष्म की तरफ गए हम, उसकी पोटेंसी, उसकी श्रेष्ठता, उसकी एनर्जी बढ़ते जाती है। इतना ही नहीं, एक पदार्थ है, उस पदार्थ का विघटन करते करते हम जाएंगे, अल्टीमेटली साइंस कहता है उसके अंदर मॉलिक्यूल निकलेगा, मॉलिक्यूल का और विघटन करेंगे तो उसके अंदर एटम निकलेगा। एटम का यदि विघटन किया गया तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इसका विघटन करने से एटम बॉम्ब बन जाता है। इतना छोटा एटम, उसका विघटन करने से एटम बॉम्ब यदि स्फोट हो गया तो पूरा शहर के शहर, नागासाकी, हिरोशिमा, ये हमारे सामने उदाहरण है कि एक एटम बॉम्ब डालने से क्या हो गया। तो जैसे जैसे सूक्ष्मता की तरफ हम जाते हैं, उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः, मनस्तस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तु सः। अपने स्थूल शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियां सूक्ष्म है। इंद्रियों से मन सूक्ष्म है, मन से बुद्धि सूक्ष्म है, और बुद्धि से आत्मा सूक्ष्म है, यानी आत्मा श्रेष्ठ है। तो जैसे जैसे हम सूक्ष्मता की तरफ जाते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ते जाती है। इतना ही नहीं, भगवद गीता में साइंटिफिक वे बताए गए हैं कि ध्यान भी कैसा लगाएं। 6ठे अध्याय में भगवद गीता के कर्मयोग, भगवद गीता के आत्मसंयम योग में लिखा है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु।
युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदि सही में हमको ध्यान योग करना है तो हमको युक्त आहार और विहार लेना पड़ेगा। यह योग जो है ना बहुत खाने वाले को ना बहुत सोने वाले को मिलता है, ना बहुत ज़्यादा खाने वाले को या ज़्यादा सोने वाले को, ना कम खाने वाले को ना कम सोने वाले को मिलता है। तो युक्त योग्य आहार और विहार होना चाहिए। योग्य आहार भगवद गीता में सिर्फ हमारे भोजन को अपने शरीर के लिए जो मिलता है उसके लिए नहीं कहते हैं। आहार जो है ब्रेन का भी आहार, हमारे पंचेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इससे जो हमें मिलता है, हम कैसा देखते हैं, हम कैसा सुनते हैं, हम कैसा बोलते हैं, इसका इफेक्ट अपने ब्रेन पर होता है। ये भी युक्त आहार होना चाहिए। ये सब योग्य रहने से ही हम ध्यान लगा सकेंगे। इतना अभ्यास श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। तीसरा उदाहरण यदि हम देखें तो ये कहता है कि आर्टिफिशियल लाइफ द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। आज तक साइंस में कहीं पर भी दुनिया में कितने भी रिसर्च हुए हो, जीव का निर्माण कोई आज तक किसी लेबोरेटरी में तो हुआ नहीं है। भगवद गीता में भगवान भी कहते हैं कि अहम बीजा प्रदाह पिता। जड़ और चेतन दोनों मिलकर प्राणी बनता है। माता और पिता का जो बीजांड तैयार होता है वो स्थूल है, जड़ है, उसके अंदर मैं चेतना के रूप में आ जाता हूँ। और जब चेतना के रूप में आता हूँ अंदर, तो उसमें चैतन्य आता है, उसमें प्राण आते हैं, फिर उसका जीव का निर्माण होता है। और जिस समय चेतना बाद में निकल जाती है, ये चेतना निकल जाने के बाद फिर से वो मृत्यु हो जाती है, फिर से वो जड़ बन जाता है। तो जड़ और चेतन का इफेक्ट दोनों का मिला के ही प्राणी बनता है। फिर उसके संस्कार, उसके देश काल, कहाँ उसका जन्म हुआ, कहाँ क्या हुआ, इसके ऊपर फिर आगे चलकर उसके ऊपर अलग अलग संस्कार से अलग अलग बनता है। प्राणी अलग अलग बनते हैं, अलग अलग इंसान बनते हैं अलग अलग प्रकार के। लेकिन अंदर सब, भले ही प्राणी जड़ सब अलग अलग है, चेतना एक ही है, सबके अंदर एक ही अंश है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अब अपने मन में एक प्रश्न आता है, जो मतलब रिलेटेड क्वेश्चन है, मेरे मन में भी आता था हमेशा, कि यदि भगवान की चेतना का, भगवान का अंश मेरे अंदर है, तो मैं पाप क्यों करता हूँ, मैं बुरे काम क्यों करता हूँ, मैं बुरा क्यों सोचता हूँ। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण कि हम पिक्चर देखते हैं सिनेमा हॉल में बैठकर, उस समय बहुत खुशी के क्षण आ गए तो हम हंसते हैं, खुश हो जाते हैं। दुख के क्षण आए तो हमारे आंखों से पानी आने लगता है। किसी पर अत्याचार हुआ तो हमको क्रोध आता है, लेकिन हम कुछ नहीं करते, सिर्फ देख सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ दृष्टा है। भगवान भी यही कहते हैं, मेरा चेतना, मेरा अंश जो है तुम्हारे शरीर में, वो सिर्फ दृष्टा है, वो कहीं पर भी डायरेक्ट भाग नहीं लेता। यही बात भगवद गीता में ये हमको बताते कि मॉडर्न साइंस के साथ आज हम भगवद गीता कैसे मैच होती है। एक दो तीन उदाहरण आपको दिया। अब हम सोचेंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट हम भगवद गीता के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। आज का सबसे बड़ा ज्वलन प्रश्न हम लोगों के सामने है कि हम स्ट्रेस मैनेज कैसा करें। एक बार राजस्थान के अंदर एक आदमी गुरु के पास गया और गुरु से जाकर कहा कि गुरुजी, मुझे कुछ ऐसा काम बताइए जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम ही ना हो। गुरुजी मुस्कुराए, बोले ठीक है, एक काम कर, कल सवेरे बात करेंगे, बाड़े के अंदर 100 ऊंट है, तो एक काम कर, रात में जो है जाकर उन 100 ऊँटों को एक बार बिठा दे, जाके सो जा। बोले ठीक है गुरुजी। रात में गया, 100 ऊँटों को बिठाने के पहले शुरू के 10-15 ऊँटों को बिठाया। आगे के ऊँटों को बिठाने जैसे ही गया, वो पीछे के 2-4 ऊँट खड़े हो गए। फिर से आया, उनको बिठाया, जब तक इधर के 2-4 ऊँट खड़े हो गए। रात भर जागता रहा, 100 ऊँट वो बैठा ही नहीं सका। कहीं कभी इधर बैठा तो उधर के उठते, उधर बैठा तो इधर के उठते। सवेरे गुरुजी ने पूछा, कैसी रही रात, नींद अच्छी हुई? बोले गुरुजी काहे की नहीं, रात भर जागता रहा, 100 ऊँट कभी बैठे ही नहीं। बोले बेटा, यही बात तुझे बताना चाहता हूँ, जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज में प्रॉब्लम, हर काम में प्रॉब्लम रहने वाले हैं। भगवद गीता
ये जो हमको इन काम में जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं उससे अपने आप को शांति कैसे प्रदान करें, इसकी बात हमको सिखाता है। क्योंकि भगवत गीता जो है ये कहाँ कही गई, कौरव पांडवों के युद्ध के बीच में, जब कौरवों की सेना और पांडवों की सेना दोनों बीच में खड़ी थी, उसके बीच में रथ लाया गया। उसमें अर्जुन ने कहा मैं देखना चाहता हूँ कि युद्ध करने के लिए कौन कौन मेरे सामने खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी थे। युद्ध रथ को लाकर जब बीच में खड़ा किया, अर्जुन ने देखा कि मेरे सामने मेरे पितामह भीष्म हैं, मेरे गुरु द्रोण हैं, मेरे सगे संबंधी, मेरे भाई बहन, मेरे भाई बहन सभी, मित्र परिवार सभी है। वो डिप्रेशन में चला गया। भगवद गीता की शुरुआत ही डिप्रेशन से हो गई है। अर्जुन इतना घबरा गया, उसने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसने श्री कृष्ण की तरफ देखकर कहा हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं किस लिए युद्ध करूं? ये राज्य मिलाने के लिए? इतने लोगों को मारने के बाद यदि राज्य मिल भी गया तो मुझे क्या फायदा? कृष्ण, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा गला सूख रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे पैर थरथरा रहे हैं, मेरा हाथ थरथरा रहे हैं, मेरे हाथ में गांडी धनुष्य में पकड़ नहीं सक रहा हूं। और वो बैठ गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। सही मानों में यदि देखा जाए, कृष्ण, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर हमारे लिए भगवद गीता कही है। हमारे जीवन एक संघर्षमय जीवन होता है हर व्यक्ति का। बिना संघर्ष का जीवन होता ही नहीं है। इस संघर्षमय जीवन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कैसे फेस करना है इसको, ये भगवद गीता सिखाती है हमको। इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जब वो डिप्रेशन में चला गया तो एक शुरुआत में तो सुनते रहे और बाद में एक ही बात कही। उसके बाद भगवद गीता बताई गई। 45 मिनट में पूरी भगवद गीता खत्म हुई। तो उसने, कृष्ण ने कहा इस समय तुझे दिमाग में क्या आ गया है, ऐसा क्यों सोच रहा है तू अर्जुन? युद्ध के मैदान में ऐसा, बोले उठ, युद्ध को शुरू हो जा। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, इस असमय तुझे क्या बुद्धि सोच रही है? तू नपुंसकता को प्राप्त न होते हुए उठ, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ये बात हमने और डिप्रेशन से बाहर लाकर आखिर युद्ध हुआ। राजाराम कार्तिक नाम का एक लड़का, बहुत ही होशियार, बेंगलोर का, टॉप में आया। उसको चेन्नई के आईआईटी में प्रवेश मिला, उसमें भी अच्छे गुण मिले। अमेरिका में सोनी कंपनी के अंदर उसको बहुत बड़ी पोस्ट मिली। अमेरिका शिफ्ट हो गया। आगे चलकर एक तमिल लड़की से वहाँ शादी हुई। जिंदगी की सफलता की एक एक सीढ़ी चढ़ता गया। 3 बच्चे हुए। सबसे बड़ा लड़का उस समय कॉलेज में था लॉस एंजलिस में, 19 साल का। उससे छोटा बच्चा 12 साल का, उससे छोटा 7 साल का। एक सुखी परिवार, संपन्न परिवार। लेकिन 16 सितंबर 2008 को उसने मार्केट से एक बंदूक खरीदी की और 2 सुसाइड नोट तैयार किए, एक पुलिस के लिए, दूसरा परिवार के लिए। क्योंकि उस समय फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, उसकी नौकरी चली गई, इतना देना सिर पर हो गया, वो डिप्रेशन में चला गया। और डिप्रेशन में जाकर उसने अपने 3 बेटों का खून किया, पत्नी को मारा और खुद ने आत्महत्या कर ली। डिप्रेशन में जाकर आदमी क्या कर सकता है? इतना ही नहीं, हम यदि देखें कि ऐसे कई उदाहरण हैं। भय्यू महाराज इंदौर के, इतने बड़े आध्यात्मिक गुरु, लेकिन पारिवारिक कलह से उन्होंने आत्महत्या की। और हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत, एक इतना अच्छा हीरो, इतने अच्छे अच्छे पिक्चर उसके लिए आने वाले, इतना उसका भविष्य भी अच्छा लग रहा था, लेकिन मेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से डिप्रेशन में जाकर उसने आत्महत्या कर ली। एक बात इस पर से क्लियर होती है कि ये मानसिक स्थिति यदि हमारी बिगड़ गई, कुछ क्षण, कुछ मोमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जबकि हम अपना आपा खो देते हैं।
और महात्मा गांधी भी ये कहते थे कि जब कभी भी मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आता है मैं भगवत गीता खोल कर बैठ जाता हूँ तो उसमें से सॉल्यूशन मिल जाता है। ये तनाव की स्थिति, स्ट्रेस की स्थिति, अपनी मानसिक स्थिति भगवत गीता में भी यही लिखा है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादये आत्मैव यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मना बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत्। हे अर्जुन, अपने आप को इस संसार समुद्र से बाहर निकालने की कोशिश करो, अपने को अधोगति में न डालो, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस मनुष्य का मन और इंद्रियों से ही शरीर जीता हुआ है वो खुद के साथ मित्र की तरह बर्ताव करता है, और जिसका मन और इंद्रियों से ही शरीर जीता हुआ नहीं है वो अपने साथ ही दुश्मन की तरह बर्ताव करने लगता है। कितनी सटीक बात बताई गीता में। एक आदमी आत्महत्या करने गया। एक बड़ी नदी थी, नदी का ब्रिज था, ब्रिज के ऊपर खड़ा रहा, कूदने वाला था। इधर से एक साधु जा रहा था, उसने रोका, अरे रुक रुक रुक। बोले क्या हो गया, क्या कर रहे हैं तू? बोले मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। क्यों? बहुत गरीब हूँ, परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता हूँ, बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या करूँ इस जिंदगी से, भगवान ने मुझे बहुत क्या दिया है। बोले रुक, 1 मिनट रुक जा। बोले एक काम कर, तेरी 2 आंखें मुझे दे दे, मैं तुझे 50 लाख रुपए देने की व्यवस्था करूँगा। बोले नहीं, ये कैसा होगा, मैं तो अंधा हो जाऊँगा फिर। अच्छा बोले ठीक है, एक काम कर, तुझे तेरे 2 हाथ मुझे दे दे, 25 लाख रुपए ले दे। बोले नहीं। बोले 2 पैर दे दे, 25 लाख ले दे। नहीं, ऐसा करते करते किडनी दे दे, तेरा हाथ, एक लीवर दे दे। करते करते उसको बताया करोड़ों की संपत्ति का मालिक है तू। भगवान ने तुझे बुद्धि दी है, इतनी शक्ति दी है, इतना बड़ा शरीर दिया है करोड़ों का, और तू कहता मैं गरीब हूँ। कुछ नहीं, मेहनत कर, रास्ता निकलेगा। उसकी मानसिक स्थिति बदल गई, उसने आत्महत्या का विचार कैंसिल कर दिया। कहने का तात्पर्य, एक पर्टिकुलर मूवमेंट जो होता है वो यदि हम टाल दें तो उससे हम बाहर आ सकते हैं। और डिप्रेशन की शुरुआत कहाँ होती है इसका अच्छा विश्लेषण भगवद गीता में किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते संगात्सम जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का चिंतन करने वाले व्यक्ति को उस विषय के प्रति आसक्ति निर्माण होती है। आसक्ति निर्माण होने के बाद उसे पाने की कामना यानी इच्छा होती है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो उसे क्रोध आता है। क्रोध आने के बाद मनुष्य का मूढ़ भाव निर्माण होता है। मूढ़ भाव निर्माण होने से उसकी ज्ञान शक्ति का, विचार शक्ति का नाश होता है और मनुष्य अपने स्थिति से गिर जाता है। इसका एक उदाहरण हम देखें कि रावण को सीता के प्रति आकर्षण निर्माण हुआ, चिंतन शुरू किया, विषय का चिंतन, फिर उससे आसक्ति निर्माण हुई, आसक्ति के बाद उसे पाने की इच्छा निर्माण हुई। उसने सीता का अपहरण किया, जाके अशोक वाटिका में रखा, काफी समझाने की, धमकाने की कोशिश की, नहीं तैयार हुई सीता विवाह के लिए, तो इसका क्रोध निर्माण हुआ। इच्छा की पूर्ति नहीं होने से क्रोध निर्माण होता है। क्रोध निर्माण होने से मूढ़ भाव, फिर मूढ़ भाव हो गया, मूर्ख जैसे दिमाग ब्लॉक हो गया उसका। फिर आदमी अपनी स्थिति से गिर जाता है। उसने अपने भाई को, विभीषण को लात मारकर निकाल दिया, अपने इतने शूरवीर बेटे इंद्रजीत को और कुंभकर्ण जैसे भाई को मरवा दिया, उसकी बलि चढ़ा दी, और अंत में
इतना बड़ा रावण शक्तिशाली जिसने भगवान को कई बार पराजित किया और यहाँ तक कि कैलाश पर्वत को उठा दिया, इतनी शक्ति उसमें थी, वैसा रावण नष्ट हो गया। अंत उसका क्या हुआ? तो कहाँ शुरू होती है इसका विश्लेषण भगवद गीता में बताया गया है। मन की स्थिति के कारण होने वाले सब रोग हैं। अब अर्जुन ने पूछा कृष्ण से कि इसको कैसे कंट्रोल करें। अभी मन की स्थिति पर, सभी मन के धरातल पर होने वाली बातें हैं, तो हाउ टू कंट्रोल माइंड। उसने पूछा कृष्ण को कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव असु दुष्करम। हे कृष्ण, ये मन बड़ा ही चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है, विचलित होने वाला है, अस्थिर है। यह बड़ा ही जिद्दी, दृढ़ है और बलवान, शक्तिशाली है। इसको वश में करना है, यानी हवा को बांध के रखने इतना कठिन कार्य है। कैसे वश में करें? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि सही बात है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कि है अर्जुन, बिल्कुल सच बात है तू जो कह रहा है। ये मन बड़ा ही चंचल है, जिद्दी है, बलवान है, वश में करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसको वश में किया जा सकता है। कैसे? अभ्यास से और वैराग्य से। अभ्यास का मतलब अब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट को भगवद गीता के हिसाब से। इसमें पहला उपाय भगवान ने जैसा बताया है, हम अभ्यास से यानी प्रैक्टिस से एंड वैराग्य यानी निर्लिप्तता से, डिटैचमेंट से कंट्रोल कर सकते हैं। अब अभ्यास का मतलब क्या है? अभ्यास के दो अर्थ हैं। एक अर्थ यह है कि हम अपने ध्येय की तरफ अपना पूरा ध्यान लगाएं। अभ्यास का अर्थ दो है। एक तो अपने ध्येय की तरफ पूरा ध्यान अपना ध्येय की तरफ लगाएं, और दूसरा हम भगवान के शरण में समर्पित भाव रखें। दोनों में से भी कुछ एक। अरुणिमा सिन्हा का नाम आपने सुना होगा। अरुणिमा सिन्हा एक फुटबॉल प्लेयर, नेशनल फुटबॉल प्लेयर, एक बार ट्रेन से जा रही थी। कुछ गुंडे मिले, उन्होंने उसके सोने की चेन खींचने की कोशिश की। उसने अपोज किया, उन गुंडों ने उठाकर उसे बाहर फेंक दिया। रात का समय था, सामने से दूसरी ट्रेन जा रही थी, उसके ऊपर से गुजरी, उसका एक पैर कट गया, उसमें पैर पर से चली गई। रात भर पड़ी रही, चूहे काट रहे थे। सवेरे आदमियों ने देखा, गांव की देहात था, उठा के हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ के डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे थे, अपने पास तो एनेस्थीसिया की व्यवस्था नहीं है, इसका पैर पूरा कैसा काटेंगे, नहीं तो जहर बढ़ जाएगा, इसको जान को धोखा है। वो सुन रही थी, उसने कहा कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं रात भर इतना सहन कर चुकी हूँ, आप मेरा पैर काट दीजिए, बिना एनेस्थीसिया के काट दीजिए, आप इसकी चिंता मत करो, मैं सहन कर लूँगी। उसने पैर काटा गया। इसके पश्चात फुटबॉल खेलने का तो उसका सवाल ही नहीं रहा। कैसे खेल सकती थी फुटबॉल? भाई एक पैर ही नहीं है उसको, आर्टिफिशियल लेग लगाया। लेकिन उसने एक दूसरा उद्देश्य बनाया जीवन का, एक ध्येय अलग बनाया कि मैं एवरेस्ट चढ़ूंगी, एवरेस्ट के शिखर को काबिज करूंगी। उस हिसाब से प्रयत्न शुरू किए उसने। एक अंत में समय ऐसा आया कि वो एवरेस्ट के नजदीक पहुंची, एक आर्टिफिशियल लेग के साथ में। जब नजदीक सामने शिखर दिख रहा था, उस समय उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया। लेकिन योगायोग से एक जर्मन का गिरियारोहक था, मर गया था वहाँ पर, उसके ऑक्सीजन का सिलेंडर लिया, वो लगाकर, उसमें भी कम बचा था, गई ऊपर, तिरंगा फहराया और फिर नीचे उतरना शुरू की। नीचे उतरते उतरते उसका ऑक्सीजन खत्म होने लगा, जल्दी जल्दी चलने लगी, उसका आर्टिफिशियल पैर निकल के गिर गया। वैसे ही घसीटते घसीटते नीचे तक उतरी, कैंप में आई, नीचे बेस कैंप में। कहने का उद्देश्य,
भगवत गीता में 2 योग बताए गए हैं, कर्म योग और भक्ति योग। कर्म योग में यही है कि अपने ध्येय के लिए तुम बिल्कुल ध्यान लगा दो, ये भी एक पूजा है, जैसे कि अरुणिमा सिन्हा ने। और दूसरा जो है कि भक्ति योग। भक्ति योग में यही बात कही जाती है कि भगवान में शरण में चले जाओ, अपने आप रास्ता निकलेगा। ये भक्ति योग 12वां अध्याय भगवत गीता का कहता है। और यहाँ वैराग्य का अर्थ है डिटैचमेंट। पहले व्हाट इज निर्लिप्तता, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। अटैचमेंट किसको कहते हैं? अटैचमेंट कहते हैं किसी के प्रति अटैचमेंट। जैसे कि एक बहुत बड़ा सर्जन था हार्ट का, उसने हजारों हार्ट की सर्जरीज की है और सक्सेसफुल रहा फुल, लेकिन जब उसके बेटे की सर्जरी करनी थी हार्ट की, वो नहीं कर सका, उसका हाथ नहीं कांपने लगा, तो उसने बाहर दूसरे डॉक्टर को बुलाकर उसके हार्ट की सर्जरी की खुद, क्योंकि उसका अटैचमेंट था। भगवद गीता में ये भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत कर, कर्म कर। यह बात हमको जचती नहीं, बिना इच्छा के हम कर्म कैसे करेंगे। लेकिन हकीकत यही है, कई बार कई इंडस्ट्रीज में देखा जिसके पास पूरे रिसोर्सेस रहते हुए भी ही इज़ अ फेल्यूर, और किसी के पास रिसोर्सेस न रहते हुए भी ही इज ए सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट। एक आधा बच्चा है पढ़ाई में बहुत अभ्यास करता है, टॉप में आने वाला है, लेकिन जब एग्जाम को निकला एक्सीडेंट हो गया उसका, वो एग्जाम तक पहुंचा ही नहीं, फल तो अपने हाथ में नहीं। ये बात जब मन से समझ लेंगे तो अपने आप वैराग्य आ जाता है। इसी को डिटैचमेंट कहते हैं। डिटैचमेंट का एक दूसरा उदाहरण आपको बताऊंगा। मेरे पिताजी बीड़ी पीते थे, मैं बचपन से देखता था उनको बीड़ी पीते हुए, लगभग 40 साल से मैं देखता था उनको बीड़ी पीते थे। एक बार मेरी भतीजी छोटी 3-4 साल की थी, पिताजी ने बीड़ी पीकर एक जो टुकड़ा बचा था फेंक दिया ऐसा। वो भागते ही, बच्ची छोटी उसको समझता नहीं था, उसने उठाया, उसने बड़ों की एक्टिंग करते हैं बच्चे, उसने पकड़ के खींचना शुरू किया ऐसा। पिताजी को इतना गुस्सा आया, उन्होंने जाकर एक थप्पड़ जोर में लगाई उसको, वहीं पेशाब कर दी उसने। इतनी घबरा गई बच्ची, वो रोने लगी। लेकिन पिताजी ने उस समय निर्णय लिया, इतने सालों की आदत 1 मिनट में उन्होंने उस दिन से, उस क्षण से बीड़ी पीना छोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड डिटैचमेंट, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। मेडिटेशन का दूसरा उपाय जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, भगवद गीता के हिसाब से मेडिटेशन है। जैसे कि मेडिटेशन हमने बताया और सिद्ध भी हुआ है, आज का साइंस भी सिद्ध कहता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ से सिद्ध हुआ है। तीसरा उपाय भगवद गीता का है इष्ट के प्रति श्रद्धा रखना। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त यानी मैं संकट में हूं, मेरा संकट दूर करो बोल के भगवान की प्रार्थना लोग करने वाले हैं, यह आर्त है। अर्थार्थी यानी मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ, भगवान मुझे पैसे की आवश्यकता है, जब मन में से ही बोलने लगते हैं, वो अर्थार्थी। जिज्ञासु यानी ये आत्मा क्या है, भगवान क्या है, ये जानने का, सुनने का प्रयास मन में से करते हैं वो। और चौथा ज्ञानी यानी जिसको आत्मा को, अपने परमात्मा को, अपने आत्मा का दर्शन जिन्होंने कर लिया ध्यान, धारणा, समाधि से, वो ज्ञानी। भगवान कहते हैं मैं चारों की सुनता हूँ, जो मुझे मन में से पुकारते हैं, जिस भाव के, जिस काम के लिए, मैं उसको पूरा करता हूँ। एक बार एक आदमी चलता था तो उसके 2 कदम के निशाने उसको दिखते थे, और उसके पीछे भी और 2 निशाने दिखते थे। वो बोलता था कौन है मेरे पीछे? वो कहते मैं कृष्ण हूँ, मैं तेरे साथ रहता हूँ। तो जब भी चलता उसके 4 कदम के निशान दिखते उसको, खुद के 2, कृष्ण के 2। समय बीतता गया, दिन बदल गए, गरीबी आ गई। गरीबी आते ये सब परिवार, दोस्त परिवार दूर भाग गया, कोई कुछ मांग न ले, परिवार के लोग दूर भाग गए। वो देखता था कि अब उसको 2 ही कदम दिखते हैं। उसको दुख होता था, दुनिया ने तो साथ छोड़ दिया, कृष्ण भी चला गया। चलो जो है, लेकिन उसकी श्रद्धा कम नहीं हुई भगवान पर की, काम करता रहा श्रद्धा के साथ। कुछ दिनों के बाद अच्छे दिन आ गए,
और देखा तो फिर 4 फिर से कदम के निशान दिखने लगे उसको। उसने पूछा, कौन है? बोले मैं कृष्ण हूँ। बोले कृष्ण एक बात कहूँ? बोले हाँ। जब दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया तू भी चला गया, तुझसे अपेक्षा नहीं की मैंने। कृष्ण बोला नहीं कृष्ण, नहीं बेटे, जिस समय तू बुरे हाल में था मैंने तुझे उठाकर पकड़ लिया था अपने गोद में, और तुझे जो 2 कदम की निशानी दिखते थे वो मेरे थे, तेरे नहीं थे। अब तू संकट से बाहर आ गया है, मैंने तुझे नीचे छोड़ दिया है, तेरे चारों अब 4 निशानी दिख रही हैं। ये श्रद्धा का भाव है। जब मन में से श्रद्धा हो जाती है तो मेंटल पीस मिलने लगता है अपने आप। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक समर्पण का भाव, एक श्रद्धा का भाव बहुत आवश्यक है। और चौथी बात जो है, भगवान के प्रति समर्पण का भाव हो। जब ये समर्पण का भाव अपने मन में जागने लगता है तो अपने आप मानसिक स्थिति शांत हो जाती है हमारी। भगवद गीता का एक श्लोक है 9वें अध्याय का, जो कहता है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भक्ति से मेरा चिंतन करते हुए रहता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। योग का अर्थ है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का प्रयत्न, और क्षेम का अर्थ है प्राप्त वस्तु की रक्षा का प्रयत्न। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरे समर्पित हो जाता है उसका योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ। हमारे महाराष्ट्र के श्रेष्ठ संत ज्ञानेश्वर जी, जिनका जन्म 1275 में हुआ, 1291 में ज्ञानेश्वरी लिखी और 1296 में उन्होंने समाधि ली। जब समाधि ली तो उन्होंने यही अध्याय 9वां अध्याय खोल के सामने रखा था और समाधि ली। उसी में का ये श्लोक है। एक बार एक डॉक्टर आशुतोष कलकत्ता से निकले गोवा के लिए फ्लाइट से। उस दिन 4 बजे एक कार्यक्रम था। राष्ट्रपति के हाथों उन्हें एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने वाला था। बहुत बड़े सर्जन, भारत के सबसे बड़े सर्जन डॉक्टर आशुतोष जब रास्ते में फ्लाइट से निकले, अचानक तूफान आया। इमरजेंसी लैंडिंग कोल्हापुर में करना पड़ा। कोल्हापुर में उतरने के बाद उनका ध्यान तो पूरा गोवा के लिए था, गोवा जाना था उनको। बोले बार बार करे थे होटल में, मुझे कैसे भी करो, मुझे पहुंचना है। बोले सर यहाँ टैक्सी से ही जाना पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है। टैक्सी मंगाई गई। रास्ते में फोंडा घाट पड़ता है, घाट है, पूरा घाट का रास्ता है। और तूफानी वर्षा हो रही थी। बार बार ड्राइवर को कह रहे थे जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। ड्राइवर बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। लगभग 2-2.5 घंटे चलने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। लगभग 2-2:30 बजे थे। मुझे कहा क्यों रोक दी? बोले सर इतनी वर्षा हो रही है, मुझे कुछ रास्ता सुधरा नहीं, मुझे जाना इस दिशा में था, मैं इस दिशा में आ गया। अब 2-2.5 घंटे आगे जाने के बाद फिर से 2-2.5 घंटे पीछे आऊँगा, वहाँ से जाऊँगा। बोले 6-7 तो बजना ही है मुझे। आज का मेरा राष्ट्रपति के हाथों से मिलने वाला पुरस्कार का कार्यक्रम कैंसिल होगा, मैं उसमें जा नहीं सकूँगा। बड़ा दुख हुआ उनको, लेकिन अब पर्याय नहीं था। बोले एक काम करते हैं, बोले भूख लगी है, देखो अपने होटल। बोले सर छोटा सा देहात है, यहाँ होटल नहीं रहेगा। बोले क्या करेंगे? बोले एक छोटा घर दिख रहा था, टूटा फूटा, गया, दरवाज़ा खटखटाया, एक 75-80 साल की महिला बाहर आई। बोले बोलिए क्या करूँ? तो बोले कुछ खाने को मिलेगा? बोले हाँ आइए अंदर आ जाइए। अंदर जाके बैठा, एक टूटा फूटा टेबल था, उसके ऊपर खाने की चीज़ें थी। जाके डॉक्टर बैठ गए उसके ऊपर, खाने लगे, भूख लगी थी। वो माताजी जाकर एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ जाकर हाथ जोड़कर बैठ गई। बाजू में 16-17 साल का बच्चा सो रहा था। वो माताजी बार बार उस बच्चे को देखती, रोती और भगवान की प्रार्थना करती। फिर से बच्चे को देखती, रोती और भगवान की प्रार्थना करती। डॉक्टर सब देख रहे थे।
जब माता जी की प्रार्थना खत्म हुई और इनका खाना खत्म हुआ, उन्होंने कहा माता जी आप रो क्यों रही हैं? अरे बच्चा कौन है? बोले ये मेरा पोता है, मेरे लड़के का लड़का। 2 साल पहले मेरा बेटा और बहू एक्सीडेंट में मारे गए। इस बच्चे की जिम्मेदारी अब मेरे पर है। ये बीमार है, इसको कुछ रोग हुआ है, यहाँ के डॉक्टर को बताया तो कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, शहर में ले जाना पड़ेगा, बड़े डॉक्टर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं तो अभी बूढ़ी हूँ, मेरे आंखों को दिखता नहीं है, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, मेरे पास पैसा भी नहीं है। अब तो मैं भगवान के शरण में जाकर कहती हूँ भगवान तू ही मेरी रक्षा कर। डॉक्टर ने केस पेपर मंगाया, देखा। ये सब देखने के बाद डॉक्टर आशुतोष रोने लगे। माता जी ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? बोले माता जी अब मुझे सब ध्यान में आ रहा है। मैं जब कलकत्ता से गोवा के लिए निकला तो रास्ते में तूफान क्यों आया? मुझे इमरजेंसी लैंडिंग कोल्हापुर में क्यों करनी पड़ी? जब मैं टैक्सी से निकला गोवा के लिए तो रास्ता क्यों भटक गया? जाना उस दिशा में था, इस दिशा में क्यों आया? माता जी आपकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली। इस बच्चे का ऑपरेशन सिर्फ एक ही डॉक्टर कर सकता है और वो मैं हूं। भगवान ने लाकर तुम्हारे घर में मुझे खड़ा कर दिया। योगक्षेम में हो। मन, शरीर और आत्मा से समर्पित भाव से यदि भगवान के शरण में जाए, भगवान हमारी रक्षा करते हैं। ये मेरी अनुभूति है जीवन की। आप मुझे पूछेंगे गुड़ कैसा लगा, मैं कहूँगा मीठा है। लेकिन आप पूछेंगे मिठास कैसी है, मैं आपको बता नहीं सकूंगा, वो तो आपको ही खाना पड़ेगा। वैसे ही अनुभूति आपको ही लेनी पड़ेगी, लेकिन एक समर्पण भाव से हो तो हमारे सब टेंशन दूर हो जाते हैं। भगवत गीता यही बताती है कि अभ्यास और वैराग्य से, श्रद्धा और समर्पण से, ये जब भाव हमारे मन में, ये सब मानसिक धरातल के सब रोग है, साइकोसोमेटिक डिसीजेस, ये कंट्रोल की जा सकती है। भगवत गीता का यदि पालन करें, ये हमें भगवत गीता हमारा मार्गदर्शन करती है हमारे जीवन के। एक उदाहरण मैंने सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट का दिया, इसे इसमें हर चीज का आपको रास्ता मिलेगा। यह भगवत गीता है। आपने मुझे इतनी शांति से ध्यान से सुना, थैंक यू वेरी मच।